Assalamu alaikum, Fiza. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam, Umar. Thank you for having me. It's my pleasure to have you on this session. So basically, the main idea of having these cup shop is to get as much knowledge from industry professionals, जहाँ पे हम differently अलग-अलग genre या अलग-अलग department में काम करने वाले industry professionals से बात कर रहे होते हैं, just to understand कि how every department, every field is different from one another. ठीक है, and what are the right pointers and what are the right things to follow if you wanted to grow in this specific field. Before we start the session, I'll be happy if you can introduce yourself to the audience and then we'll see how the conversation goes. Alright, so my name is Faza and I have been working in HR from past 2.5 years. Now I started off my career with a consultancy firm where I got the hands-on experience for hiring for different clients including different sectors, FMCG, manufacturing, textile, you name it and you have it. Especially IT industry. That too for international and local clients both. Then I moved to a textile firm. Then I moved to an IT firm, and now I'm currently working with a textile firm once again as an HR business partner. Fair So enough. So yeah, a lot of your experience are more into towards the human resource side and not only specifically human resource, you are like working for more likely textile related side. Okay. So we'll be touching and we'll be discussing that side as well. But when I was going through your profile, I see that you have done your bachelor's in 2023. So why do you think you choose human resources the prior field? Why don't you think? Because a lot of time people who are doing BBA, they think that marketing is much more outspoken, much shiny genre जहाँ पे लोग जा रहे होते हैं. So why do you think human resource? What were the right pointers that you think yeah, नहीं, human resource is something that I wanted to pick? So people will have an idea because a lot of time in Pakistan हमारी यहाँ ग्रेजुएशन का जो फैसला हो रहा होता है या तो वो कोई चाचा मामा के बेटे ने किसी चीज़ में करा हुआ होता है तो हम उसके हिसाब से देख रहे होते हैं कि भाई ठीक है इसने ये चीज़ पढ़ ली है तो आप भी ये चीज़ कर लें या कभी कभार ये होता है कि because being in our generation what I see is uh, our parents usually don't know कि what the specific field look like and how this specific field will work. तो आपको क्या लगता है कि what will be your thought process when you're choosing your bachelor's and doing BBA in HR? my main aspect was I am a people's person, and by the term people's person, I love to hear people out. I love to hear their grievances. I love to hear them out, so that I can be there for them. I can give them solutions. I can guide them through. So this was always a thing for me that I used to, listen to people a lot. And when I was pursuing my career, I started off as an intern with the Cruiser Ventures, where I was actually looking after the talent acquisition for different teams as well. But I was also looking after the grievances. I was also looking after the employer branding. So as far as the marketing and HR is concerned, when you talk about HR and marketing together, you are basically doing the marketing of the company. You're basically doing the marketing of the company when you're doing the employer branding, when you're trying to attract the talent towards the company. So this is the field that you get to be your inner self as well. Like as I said, I wanted to be a people's person, so I wanted to pursue my career in a field where I can align both my personal goals and my professional goals altogether. So this is why I chose HR. Fair enough, fair enough. So, moving forward to your prior experiences, so yeah, being in HR, सबसे बड़ा जो मसला ये होता है कि लोगों को ये लगता है कि यार आप HR में हैं तो you own the company or whatever you doing is the right thing. A lot of time people reach out to you for any specific jobs और उनको ऐसा लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स का जो बंदा है वो अपनी पसंद से किसी को भी हायर कर रहा है ठीक है सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट पॉइंटर्स के आई नो एचआर इज अ वेरी पब्लिक स्पीकिंग काइंड ऑफ अ थिंग जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से मिलना होता है बट then you need to realize you need to set the boundaries because a lot of time people think that you are the whole and sole proprietor of that company because 99 कह लें या 100% कह लें the first interaction of any person
टू द कंपनी इज द एचआर। ठीक है, वो अब किसी भी कंपनी का, ऑब्वियसली बात है, किसी कंपनी का सीईओ तो किसी भी बंदे को रीच आउट करने वाला नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स से कोई ना कोई रीच आउट करता है। ठीक है, सो व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू पोर्ट्रे योर सेल्फ, बिकॉज मैं मुझे लगता है कि आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि लोग आपको रीच आउट करते होंगे और उनको लगता होगा कि यार वो उन्होंने अभी आपको सीवी भेजी और वो 2 घंटे में पूछ रहे होते हैं कि क्या अपडेट है। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे कोर मसले होते हैं बीइंग एन एम्प्लॉयर, क्योंकि एम्प्लॉइज के तो हम मसले सुनते रहते हैं कि आए दिन हम लिंक्डइन पे देख रहे होते हैं, वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ पोस्ट अबाउट क्या दिस एचआर को मैंने रीच आउट करा, ये एचआर ने इस तरीके से कर दिया, ये एचआर ने इस तरीके से कर दिया, बट एट द एंड ऑफ द डे HR do also have their own KPIs and they also have to fulfill those KPIs as well. So पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं। आपको क्या लगता है कि यार बीइंग वर्किंग फॉर अ टेक्सटाइल करियर पाथवे, जहाँ पे आपको बहुत सारे लोगों से बात करनी होती है, एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट यू आर डीलिंग विद पीपल हु नो व्हाट टू से, बिकॉज आप हमेशा ही VP लेवल के बंदों को हायर नहीं कर रही होती है, मैनेजर्स को हायर नहीं कर रही होती, यू नीड टू ऑल्सो हायर पीपल फॉर ग्राउंड स्टाफ, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लोग होते हैं और वो ज्यादातर वो लोग नहीं है जिनको उस तरीके से चीजें पता है या उस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस पता है। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द की प्रॉब्लम दैट यू यूजुअली फेस एज एन HR, कि यार अगर ये चीजें बेहतर हो एम्प्लॉई के साइड से तो एम्प्लॉयर्स को बड़ा फायदा हो, बीइंग एन HR आपको बड़ा फायदा हो और चीजें स्मूथली हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंसी एंड truthfulness is very important. Transparency, when I talk about, like, if I'm talking about from the employer's perspective, I need to be sure that the employee that I'm going to hire or that I'm going to screen out, क्योंकि इनिशियल जो है वो हमारा स्क्रीनिंग से स्टार्ट होता है सारा प्रोसेस। सो मैं उसको जब तक स्क्रीनिंग पे अपने तमाम पर्क्स एंड बेनिफिट्स या अपने वर्किंग कल्चर का या उसकी जो जेडी है जिस पर मैं उसको हायर करना चाह रही हूँ, मैं उसको ट्रुथफुली नहीं बताऊंगी, मैं उसको ट्रांसपेरेंट होकर चीज़ें नहीं उसके साथ शेयर करूंगी। And if I'll keep him in the dark, of course, he or she is not going to, or he or she will not be able to perform in such a way that can be fruitful for the company or for himself as well. So सबसे पहली चीज़ जो मेरी इम्पोर्टेंट है HR के फील्ड में वो ये है कि आई नीड टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट, I need to be very vigilant about their particular attitudes, about their particular, transparency. वो मुझसे कितने ट्रांसपेरेंट है, मैं उनसे कितनी ट्रांसपेरेंट हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं जो है वो XYZ perks and benefits ऑफर कर रही हूँ, whereas I know that I am unable to do, or maybe I am not, the company is not in the position to offer such benefits right now, but I'm just committing for the sake of getting that individual hired. I'm not being true to him. I'm not being true to myself. तो मेरा जो सबसे पहला काम है as an HR, it is to be true to myself and true to the other person that I'm going or that I'm willing to hire. इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा चैलेंज आता है वो ये है कि as you said, कि people think that HR is the whole soul, or HR is the only person that decides either to keep that individual hired or either to retain him, either to fire him, whatsoever. However, it's never the only case that HR is responsible for. हमारे पास बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। Sometimes we are, depending upon the department, अगर वो डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल समझ नहीं आया है, एंड आई कैन नॉट straight away tell the person that you are not being selected for so and so reasons. So of course I have to be vigilant enough to tell him the truth, but in such a way that it does not disappoint him, it does not shatters his confidence. So this is how the both the parties go. So basically, you are saying that it's like a one on one. It's like a हर चीज बराबर होनी चाहिए. It's not only for the employer side, it's not only for the employee side as well. Exactly. You just mentioned that sometimes the hardest job being an HR is to give those news that are not हैप्पी, मतलब हम हमेशा थोड़ी आप हम हमेशा देख रहे होते हैं कि हम क्या एचआर बहुत सारी चीजें कर रहा होता है, बट द रियलिटी इज कि बहुत सारी जगह आपको बहुत सारे ऐसी न्यूज देनी होती है एम्प्लॉयज को जो कि शायद उनके लिए बेहतर ना हो, क्योंकि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो इकोनॉमी की हालत है पाकिस्तान में राइट नाउ, एंड एवरीवन वांट्स टू
being on a very stable surface. But nowadays, for the last couple of years, we are seeing massive layoffs in a lot of companies. We are seeing massive layoff because of different reason. ठीक है. मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपने एक चीज बोली कि a lot of time when you reach out to people about the news, okay fine, you're not selected or this is not the right thing, but इसमें दो तीन चीजें लैक है. एक तो ये कि बहुत सारी जगह एचआर से कम्युनिकेशन आती ही नहीं है इस तरीके से. Sometimes we see के people reach out to HR and HR never get back to them, whatsoever reason. I'm pretty much sure उसके अपने 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 पॉइंटर्स होते होंगे हर एचआर के, बट जस्ट वांटेड टू नो, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए ना. आई डू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स हु वर्क इन द एचआर फील्ड एंड आई नो दैट बीइंग एन एचआर इज नॉट that easy thing, because you are half of the day you are aligning interviews if you are in the TA, but half of the time you have to take interviews, do all the paperwork, everything and all, and it's hard to manage those things. Okay, but do you think that people nowadays, people usually reach out to you uh, of saying कि ठीक है अगर आप हमें select नहीं कर रहे, क्योंकि a lot of time people usually don't need a feedback. Okay fine, they got a email, they got a call, okay you are not selected, but they never ask any HR, they never ask the hiring person कि what are the things that they can improve. ठीक है, क्योंकि I'm pretty much sure कि not hiring is not only because of you are not capable enough. Not hiring can be कि you are overqualified. Not hiring can be maybe वो जो पोजीशन है वो होल्ड हो गई हो. बिकॉज आप हर कम्युनिकेशन हर तरीके से पब्लिक नहीं कर सकते. हो सकता है कि एक पोजीशन ओपन हुई हो, कुछ टाइम बाद वो पोजीशन इंटरनली क्लोज हो गई हो, और जब वो उस पोजीशन पर उस बंदे की जरूरत ना हो. ठीक है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब आप हायरिंग शुरू कर देते हैं, इंटरव्यूज ले रहे होते हैं, तो आपको ये चीज बतानी पड़ती है. बट कभी भी एम्प्लॉई साइड से मैंने आज तक, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनसे मैंने सुना हो कि मुझे रिजेक्शन के बाद मैंने ये चीज पूछी. आई एम प्रीटी मच श्योर वो हेल्प आउट कर सकता है. या एचआर ही कोई ऐसी चीज बता दे कि भाई ठीक है, हम इन स्केल्स पे जा रहे थे, इन स्केल्स में आपका ये स्कोर है. बिकॉज व्हाट वी सी इन पाकिस्तान, इट्स अ वेरी ग्रे एरिया. ठीक है, you send your resume and it's a very gray area. Either you get a call or an interview and get a job, either you don't have anything, you don't get any emails, you don't get any calls. तो वो ग्रे एरिया में रहता है बंदा. और आई थिंक इसी वजह से जो एम्प्लॉई है उसके ज्यादा मसले बढ़ जाते हैं. उसको लगता है कि हर एचआर इस तरीके से. I'm not talking about the big MNC, I'm not talking about companies who are doing that, but in Pakistan, I think 70% of the companies don't have this big resources कि जहाँ पे एचआर फील्ड के अंदर कोई 50-60 लोग हों जिसका हर बंदे का काम इस तरीके से हो. Sometimes it's more likely, I see a lot of companies in Pakistan where one man is the HR and he is doing everything. ठीक है, he is responsible of everything. ठीक है. Do you think there should be some sort of a, a proper structure where you can rescore the person so they can also elaborate, they can also calculate, okay fine यार मैं इन चीजों में सही नहीं रहा, अब मैं इसमें अगली मर्तबा मेहनत कर सकता हूँ. हुँ। अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहली चीज़ पहले तो आई डू अंडरस्टैंड द चैलेंजेस एज़ अ एचआरबीपी, आई डू अंडरस्टैंड द चैलेंज ऑफ नॉट बीइंग अवेलेबल और नॉट गेटिंग द प्रॉपर फीडबैक फ्रॉम द डिपार्टमेंट. ठीक है? बहुत सारी दफ़ा में हमें जो है वो सामने वाला इंडिविजुअल क्वालिफाइड लग रहा होता है फॉर द पोज़ीशन एज़ एन एचआर, लेकिन वो टेक्निकली कितना साउंड है या टेक्निकली वो कितना वीक है, वो हमें थ्रू एंड थ्रू नहीं पता चल रहा होता डिपार्टमेंट की तरफ से. लेकिन चीज़ में हमारी अकाउंटेबिलिटी इस तरीके से आ सकती है कि वी नीड टू encourage the department if you're not if you're not able to give the feedback अलग से as an HR, as a department whatsoever, just try to conclude that particular interview in such a way that the individual gets the idea that where he or she is lacking, where the individual was, missing out, or where the individual had the potential to showcase himself, but he could not do it due to any XYZ reasons. It could be due to poor communication skills. It could be due to the deliverables of the whatever he is trying to say. तो इस चीज़ में जो है वो सबसे पहले हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम जिस भी डिपार्टमेंट के साथ, बिकॉज सिंस आई एम वर्किंग एज एन एचआर बिजनेस पार्टनर, तो मेरे पास एक सर्टेन डिपार्टमेंट्स हैं. मेरा काम ये होना चाहिए कि मैं उन डिपार्टमेंट्स को इस तरीके से बताऊं कि देखिए, अगर हम उसको थ्रू एंड थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंटरव्यू दे देंगे, तो शायद उसके लिए अगले इंटरव्यू में
बहुत आसान होगा उस चीज़ को कोप अप करना, उस चीज़ को अपना जो है वो इवैल्यूएट करके, उस पे एनालाइज़ करके, उसको आगे इम्प्रूव करना। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ बहुत ईज़ी और बहुत बेसिक ये होता है कि आप इंटरव्यू के दौरान ही उसको कुछ इस तरह का कंस्ट्रक्टिव हो, लेकिन इस तरह का फीडबैक हो कि उसको समझ आ जाए कि वेयर ही और शी वाज़ लैकिंग। उसके बाद when people reach out to me, अच्छा I have this practice, not always, but I try my best. जो मुझे रिसोर्स लगता है कि ही और शी कैन इम्प्रूव हिमसेल्फ, वहाँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनको प्रॉपर फीडबैक दे दूँ, आइदर बाय टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर मुझे वो नहीं मिलता तो जो मेरी एज एन एचआर अपनी ऑब्जर्वेशन होती है वो मैं उसको बता रही होती हूँ कि देखो यहाँ तुम्हारी ये कम्युनिकेशन वीक थी, यहाँ तुम अपने आप को इस तरीके से शोकेस कर सकते हो। इवन इन माई सर्कल आई एम लाइक ऑलवेज गाइडिंग पीपल के अपने इंटरव्यूज को किस तरीके से आपने जवाब देना है, किस तरीके से अपने आप को बेहतर बनाना है, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि यू डोंट नो एनीथिंग। इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्सेप्ट दैट यू डोंट नो दैट पर्टिकुलर थिंग। इट्स जस्ट यू डोंट हैव टू सरेंडर ऑलवेज कि भाई हमें नहीं आता तो हम कर भी नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आप चांस आपको मिलेगा, शायद आप उन लोगों से बहुत दर्जा बेहतर कर सको जो कि क्वालिफाइड है इस वक्त। तो ये वाली चीज़ है कि हमें अपने अकाउंटेबिलिटी को एज एन एचआर पर्सन बहुत थोरोली देखना पड़ता है। आइदर अगर आप इंटरव्यू के दौरान फीडबैक दे सकते हो, जो कि बहुत ईजी है और मुझे लगता है कि ऐसा हमें कर लेना चाहिए, तो इंडिविजुअल के लिए मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाते ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप कोशिश करो कि आप उसको फीडबैक दे दो। बट यहाँ पे साथ में आई वुड ऑल्सो encourage the employees that are applying for a particular job to at least take the responsibility to ask the feedback. हाँ, मुझे इस चीज़ का आइडिया है कि नॉट एवरी एचआर पर्सन रिस्पॉन्ड्स बैक टू द इंडिविजुअल दैट इज अप्लाइंग फॉर द जॉब, लेकिन एट लीस्ट डू योर पार्ट। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो आपको जवाब दे देते हैं, आपको नहीं पता कि किसी के फीडबैक से आप कितना इम्प्रूव हो सकते हो। सो ऑलवेज डू योर प्ले योर पार्ट एज एन एचआर और एज एन इंडिविजुअल इन एनी केस। Fair enough. Moving forward, so let's discuss the employee side first कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो एम्प्लॉयज़ बेहतर कर सकते हैं, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द एम्प्लॉयर साइड एज वेल। एम्प्लॉय साइड में मुझे एक चीज़ बताइएगा कि बीइंग एन एचआर, ठीक है, यू सी आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ रेज्यूमेस पर डे, ठीक है, you meet hundreds of people per day, and being an HR, I think you guys have the ability to judge a person in like 20-25 seconds or more, ठीक है, okay fine, ये बंदा सही है, ये बंदा सही नहीं है, because you are not only hiring a person, it's a lot of responsibility, क्योंकि if you're hiring someone, उसकी होप्स होती हैं, और फिर अगर वो 2-3 महीने 4 महीने बाद वो चीज़ नहीं चल पाती, देन ही माइट ब्लेम यू और शी माइट ब्लेम यू, ठीक है। और मे बी समटाइम्स इट्स ऑल्सो ऑन योर केपीआईज कि भाई आप ऐसे बंदे कैसे लेकर आ सकते हो कि इतने फास्ट पेस में आपको बंदे हायर भी करने हैं, लेकिन आप फिर 4 महीने बाद अगर वो जा रहे हैं तो कंपनी ऑब्वियस सी बात है आपकी केपीआईज पे रख के भी पूछते हो। इट्स नॉट ओनली अबाउट जस्ट hiring number of employees, is also about, it's not only about the quantity, it's also about the quality. So what do you think, being an HR, being in the field for a couple of years, what do you think, what are the right key pointers an HR see in a resume, in a profile, on a LinkedIn, या किसी इन बंदे के अंदर ये 4-5 चीजें देखने के बाद वो फैसला करता है क्योंकि फाइनली दे आर गोइंग टू बी इन द सेकंड राउंड और नॉट। अच्छा, इसका ना सबसे पहली चीज़ ये है कि यू नीड टू आइडेंटिफाई देयर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आइडेंटिफाई होता है? इफ़ आई एम लुकिंग आउट ऑन अ सी, उसका प्रोडक्शन का भी एक्सपीरियंस है, उसका ऑपरेशनल एक्सीलेंस का भी एक्सपीरियंस है। सिंस आई एम thoroughly working for industrial engineering department right now, मैं उसकी क्योंकि एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे पास फ्रेशर्स भी आ रहे थे, तो वहाँ पे अक्सर मुझे फ्रेशर्स को इसलिए भी रिजेक्ट करना पड़ा क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट था अपने इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, आई वॉज इंटरव्यूइंग दैम फॉर द पोजिशन of operational excellence, and they were coming with the interest of supply chain, with the interest of production। तो of course अगर मुझे पता है कि इंडिविजुअल मेरी पोजीशन जो है वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस की है और जो इंडिविजुअल है उसका इंटरेस्ट जो है वो सप्लाई चेन में है या प्रोडक्शन साइड है, तो ऑफ कोर्स मैं उस रिसोर्स को अपने पास, ऑल्दो
the individual might be very competent. He or she could be a gold medalist, bronze medalist. क्योंकि मेरे पास एक फ्रेशर ऐसी भी थी. She was a bronze medalist, but she appeared for the interview of operational excellence, but she had interest in supply chain. तो मेरे तरफ से उस बच्ची को हायर करना, that was very unfair to the individual and to the department and to my KPIs as well. Because in next few years, what if she asked me कि यार I always told you that I wanted to be a part of supply chain, although I applied for the interview of operational excellence, but I was a fresher. You had the experience, you had the ability to, analyze my profile, you had the ability to understand my interest. Why did you hire me in operational excellence when I was interested in supply chain? तो वो बच्ची को आगे जाके रिग्रेट हो और वो आगे जाके जो है वो मुझसे क्वेश्चन करे, उससे बहुत बेहतर है कि मैं उसको इनिशियल स्टेज पे बता दूं कि भाई ये पोजीशन है एंड योर इंटरेस्ट डज नॉट अलाइन विद आवर पोजीशन. तो इस तरह की चीज़ों में जो है एचआर को इतना विजिलेंट इसलिए होना पड़ता है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू यू नीड टू रियली आस्क if the individual is willing to switch or move forward towards the other career path, तो वो क्यों करना चाह रहा है, उसको ऐसा क्या इंटरेस्ट आ रहा है, उसको ऐसी क्या चीज़ जो है वो अट्रैक्टिव लगी उस दूसरे करियर पाथ में, दैट ही और शी इज विलिंग टू परस्यू दैट अदर करियर पाथ. ये हम्म. इंटरव्यू के दौरान भी आप पूछ सकते हो, या आप सीवी के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो. बिकॉज कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि शुरू के कुछ महीने जो है वो एबीसी डोमेन में काम करते हैं एंड देन ओवर द इयर्स दे मूव टू एक्सवाईजी डोमेन. तो हम्म. वो चीज़ आपको थोड़ा पढ़ के भी अंदाज़ा हो जाती है. एंड इफ बाय चांस यू आर calling them for the interview, you need to ask them कि आपको ऐसे क्या अट्रैक्टिव लगा, so that you have an idea कि अगर वो आपके पास हायर होता है तो in next few years, in next few months, he does not or she does not switch to other career path. ठीक हो गया, एक तो ये हो गया. दूसरा, और क्या ऐसी चीज हो सकती है जो आपको लगता है कि यार एक इंडिविजुअल के अंदर आप ये चीजें देखते हैं बिफोर, बिकॉज 25 सेकेंड इज वेरी लेस. मतलब अगर आपको एक दिन के अंदर 100 रेज्यूमेज देखनी है, हम्म. और अगर आपको पोजीशन लॉक करनी है अगले 2 हफ्ते में, तो आप एक प्रोफाइल के अंदर और क्या क्या ऐसी चीजें देखती हैं कि यार आपको लगता है कि यार ये वो चीज है कि ये स्टेबल है. ठीक है, जैसे फॉर फॉर एग्जांपल बहुत टाइम ये हुआ कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, मुझे लगा कि लोग कहते हैं कि यार फ्रीक्वेंटली स्विचेस आर रेड फ्लैग. ठीक है, अगर उसको उसको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को बताना नहीं आता, इट्स अ रेड फ्लैग. अगर उसकी सीवी उस हिसाब से नहीं बनी हुई, या अगर ऐसा लग रहा है कि यार एक ही सीवी है और वो हर जगह अप्लाई कर रहा है उससे, तो इट्स अ रेड फ्लैग. ठीक है, सो व्हाट आर अदर रेड फ्लैग्स दैट यू थिंक यार ये अगर सीवी के अंदर या अगर ये प्रोफाइल के अंदर होता है तो फिर तो आसान हो जाता है कि यार ये अगले स्टेप में तो नहीं जा रहा. Lack of interest is very basic tool for an HR individual to identify either the person that he or she is screening out is interested for the role or not. I reached out to a person. I told him that we have this ABC opportunity, and अच्छा बहुत सारे लोग जो हैं वो budget disclose नहीं करते. So what we do is, what my practice is, I always ask them that what is your current and what is your expected, so that I have a fair idea that if the individual is drawing XYZ current salary, so as per the market, as per the standard raise 30% 40% जो होगा वो ठीक है, मैं वेरिएबल मेरे लिए होगा या नहीं होगा, या उसकी जो भी सैलरी एक्सपेक्टेशंस है वो मेरे लिए वेरिएबल होंगी या नहीं होगी. तो वहाँ पर फिर मैं, अगर कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं जो मुझे लगता है कि बहुत अनरियलिस्टिक हैं, या मैं रियलिस्टिक होने के बावजूद भी उनको मीट नहीं कर सकती, तो आई स्ट्रेट अवे टेल देम दैट योर एक्सपेक्टेशंस इज समथिंग दैट इज आउट ऑफ माय बजट, हम्म. so that he or she has an idea कि हाँ ठीक है, the HR person is being very transparent to me कि उसके पास नहीं है, तो वो होप भी नहीं रखता कि फिर मैं उसको इंटरव्यू पे बुला के टाइम वेस्ट करूँगी. लेकिन रेड फ्लैग में इंटरेस्ट जो है ना, आप वो इस तरीके से जज कर सकते हो कि वो इंडिविजुअल आपसे कितना कीन है बात करने के लिए. क्योंकि हम्म. हमारा सबसे पहला स्टेप जो है वो हायरिंग का ये होता है कि यू कॉल देम एंड यू स्क्रीन देम आउट. रिज्यूमे पढ़ने के बाद आप उसको स्क्रीन करते हो, उस पे आपको बात करने से अंदाज़ा हो जाता है कि वो बंदा आपसे कितना विलिंगली बात कर रहा है. ठीक हो विलिंगली गया. बात करने के अलावा आपको वो कितना थ्रूपुट टाइम में जो है वो जो है वो आपको आंसर दे रहा है, वो कितना
इन डेप्थ नॉलेज अपनी आपको शेयर कर रहा है, सो दैट यू कैन गेज विद हिज प्रोफाइल एंड यू कैन एक्चुअली कॉल इन फॉर द इंटरव्यू। तो इस ठीक है। तरीके से। यू जस्ट सेड अभी एक बात कि यू कॉल एन एम्प्लॉय एंड देन आस्क फॉर देयर करंट एंड देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। पूरी दुनिया में जरूरी नहीं है कि आप अगर 1 लाख पे काम कर रहे हैं, इट्स ओनली अबाउट कि अगर पोजीशन 2 लाख रुपए की है तो मेरे कुछ सवालात हैं इस पे। पहली चीज ये कि पाकिस्तान में एचआर सैलरी ब्रैकेट क्यों नहीं लिखता? वाई इट्स ओनली a नंबर? ठीक है, लॉट ऑफ टाइम आई सी XYZ ओपनिंग एंड पेइंग 1,50,000 रुपीज, ठीक है। नो पर्क्स एंड बेनिफिट्स आर मेंशन, ठीक है। इट्स ओनली वन नंबर, ठीक है। जबकि पूरी दुनिया में ब्रैकेट होता है, द लोअर ब्रैकेट एंड द अपर ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये होती है कि आई सी इन पाकिस्तान एचआर का सबसे पहला सवाल होता है आपकी करंट सैलरी क्या और आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, बिफोर दे इवन टेल के उस पोजीशन पे आप हायरिंग कर कितने पे रहे, ठीक है। हम्म, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा 1 लाख रुपए में काम कर रहा है, ठीक है, उसकी कोई मजबूरी है, लेकिन अगर आपके पास कोई पोजीशन है जो कि 4 लाख रुपए की है, तो जरूरी थोड़ी अगर वो 1 लाख पे काम करे तो आप उसको 1,15,000 पे हायर करें। आप अपने अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हायर करें, और पूरी दुनिया में इसी तरीके से होता है, ठीक है। कंपनीज डू हैव देयर बजट फॉर सर्टेन पोजीशंस, ठीक है। और उसके दो कैप्स होते हैं, एक हायर कैप होता है, एक लोअर कैप होता है। वो इनिशियल कॉल और इंटरव्यूज के बाद फाइनल कॉल में डिसाइड होता है कि ठीक है भाई, लेकिन आप रहते उसी ब्रैकेट के अंदर हैं। ना आप उस ब्रैकेट से ऊपर जा सकते हैं, ना आप उस ब्रैकेट के नीचे जा सकते हैं, और उससे कोई ताल्लुक नहीं होता कि आपकी प्रीवियस सैलरी कितनी थी, ठीक है। तो पहली चीज ये कि करंट सैलरी और एक्सपेक्टेशन सैलरी जान के क्या ही फायदा है। क्योंकि आई एम प्रीटी मच श्योर कि अगर किसी बंदे ने अप्लाई करा है और आपको ये बात पता है कि आपने उस पोजीशन पे पैसे लिखे हुए हैं, तो उसको पता है कि उससे ज्यादा तो आप देंगे नहीं, ठीक है। और उससे कम पे वो आएगा नहीं, सही है। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कि व्हाई डू यू थिंक कि इन पाकिस्तान एक्सपेक्टेड सैलरी डू मैटर्स, ठीक है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ओवर हेयर इन पाकिस्तान इट्स ग्रॉस सैलरी, इट्स नॉट नेट सैलरी, ठीक है। कभी कभार एम्प्लॉय 1 लाख रुपए पे होता है और उसको बहुत सारे पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि वो अगर देखा जाए तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इन हैंड सैलरी कितनी है, इट्स ऑल्सो अबाउट द पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है। तो वो अगर मिलके किसी की सैलरी किसी की नेट सैलरी से भी ऊपर जा रही है, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन कोई नहीं है। मैं जहाँ पे देख रहा होता हूँ, यहाँ पे 20,000 में भी लोग हायर हो रहे होते हैं और यहाँ पे 5 लाख में भी लोग हायर होते होते हैं। कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि भाई ठीक है, अगर आप S1 ग्रेड में तो आपकी इतनी सैलरी होगी, आप S2 ग्रेड में आपकी इतनी सैलरी होगी। डू यू थिंक दिस इज वन ऑफ द वेरी लैक in the society? How do we fix this? Why this current salary and expected salary do make sense? For example, अगर कल को आपके पास एक ओपनिंग है, और मैंने बहुत जगह ये देखा है कि बहुत सारे एचआर ये कर रहे होते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि यू आर डूइंग इट और अ लॉट ऑफ कंपनीज आर डूइंग इट, बट आई सी कि लॉट ऑफ पीपल आर डूइंग दैट, कि उनको ऐसा लगता है कि कम में हायर कर लो तो बहुत बड़ा कोई कमाल करा है उन्होंने। बट वो बैकफायर इस तरीके से करता है कि जब आपको लगता है कि आप कम पे हायर करते हैं, तो उस बंदे को कभी ना कहीं पता जरूर चलता है कि वो कम पर हायर हुआ है। एंड इट विल बैकफायर फॉर यू एज वेल। आप हायर कर लेंगे कम पे, वो 4 महीने बाद छोड़ के चले जाएगा। तो ये जो मसले हैं, ये जो क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ना एचआर की कंपनी है, ना एम्प्लॉय इसलिए आ रहा है कि उसको फ्री में काम करना है। इट्स अ मनी मेकिंग कंपनी। आपको पता है कि आपने इस पोजीशन पे इतने पैसे कमाने हैं, वो इसलिए काम कर रहे हैं। और आई एम प्रीटी मच श्योर एचआर को सबकी सैलरीज पता है। तो एचआर बहुत मरतबा ऐसा होता होगा कि आप अपनी सैलरी से बहुत ज्यादा सैलरी वाले बंदे को हायर करते होंगे। तो इसका मतलब कहीं ये नहीं है कि आप उससे जेलस हो जाएं या इस तरीके की चीज करें। तो किस तरीके से उसको सॉर्ट किया जा सकता है? व्हाट शुड बी द राइट pathway moving forward, being an HR, being an employee, being a company, being a owner? What should be the right exercises? अच्छा, I'll answer this first in that way कि आपने मुझसे पूछा कि जब आपने पोजीशन के साथ बजट मेंशन कर दिया है तो आप एक्सपेक्टेड सैलरी क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि ना इंडिविजुअल ज़्यादा वाला कम पे आने के लिए विलिंग होगा, ना कम वाला जो है वो इरेलीवेंट सी के मुताबिक अप्लाई करेगा। जब ये चीज़ हमारे पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर इतनी ज़्यादा है कि if I am posting a job ad for the role of ABC at ABC location, people from XYZ locations or so and so locations keep applying for that ABC position for ABC location। अच्छा, जब उनको बंदा स्क्रीन आउट करता है, क्योंकि
हमारा काम है कि अगर किसी ने अप्लाई किया है और वो हमें सीवी जो है वो रेलेवेंट लग रही है, तो हम उसको कॉल करके पूछेंगे वेदर यू आर विलिंग टू रिलोकेट और नॉट। ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब। हम्म। फिर जब उनको पता चलता है कि नहीं, ये तो उस जगह की पोजीशन है, हम तो रिलोकेशन के लिए ओपन नहीं है, हम ये हम एक्स वाई जी रीजन, हम्म। their reasons could be very very justified. I'm not saying that their reasons are not justified, but I'm saying that when you are reading a job ad, just give a chance to read the position title, read the job description, and read हम्म। the location that is mentioned in the position. तो फिर इस तरीके से अगर आप बजट भी मेंशन कर रहे हो उस पोजीशन के ऊपर, do you really think that people are going to apply for that position इन अ सेंस कि वो जो है वो उस बजट को मीट कर रहे होंगे? नो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट, क्योंकि उनको ये है कि हमारी सीवी पहुंच जाए किसी तरीके से, और उसमें उनका भी टोटली फॉल्ट नहीं है, बिकॉज द जॉब मार्केट इज वेरी वेरी अनसैचुरेटेड। आपके पास आज जॉब है कल नहीं है, यू नेवर नो, वी आर इन अ वेरी बैड इकोनॉमिक क्राइसिस राइट नाउ, कि people are just hunting for the job irrespective of what they are applying for, what they are doing, what they want to do in life, उनको बस जॉब चाहिए। तो हम्म। उसमें कभी कोई पूरा किसी का फॉल्ट नहीं है, लेकिन करंट और सैलरी एक्सपेक्टेशंस मालूम करना स्क्रीनिंग पे इसलिए भी ज़रूरी होता है, बिकॉज फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ बजट फॉर अ पोजीशन ऑफ 150K and the individual that I'm tapping is already drawing 140 or 130, ठीक है, तो मुझे तो नहीं पता ना कि वो 130 ले रहा है या 140 ले रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस उसका जो है वो बोल रहा है कि ठीक है ही वुड नॉट बी मोर देन 120। तो अगर 120 भी ले रहा है तो आई कैन टैप हिम फॉर 150 160, नॉट मोर देन दैट, राइट? 40 हम्म। 40,000 का रेज इज जस्टिफाइड। तो जब तक मैं उससे उसकी करंट नहीं पूछूंगी, जब तक मैं उससे उसकी एक्सपेक्टेशन से नहीं पूछूंगी, मुझे आइडिया आइडिया कैसे होगा कि ही और शी इज गोइंग टू बी फिट फॉर द पोजीशन दैट आई एम हायरिंग फॉर। नहीं, जब दोनों that is my question ना. So okay, fine, you ask their current salary. ठीक है. HR ask their current salary कि ठीक है भाई, हमें ये जानना है कि वो अभी किस पर है. बट कंपनी, इफ कंपनी अलॉटेड 1,50,000 रुपीज, तो आप तो 1,50,000 देंगे ना. ऑब्वियसली हाँ, बात है, आप उसको वो एक्सपेक्टेशन कैन बी अन अन अनप्लान्ड. मतलब पाकिस्तान में एक्सपेक्टेशन, मैं आई कैन वेरी वाउच फॉर इट. अ लॉट ऑफ पीपल इज लाइक, दे आर लाइक stupid enough. They are earning one lakh rupees and they are like, यार हम तो 1.5 लाख पे स्विच करेंगे. And I was like, who which company is switching for 50%? मतलब आपकी सैलरी का 50% कौन करेगा? ठीक है. अपेरेंटली देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉसिबल सी बात है. ठीक है. मसला ये है कि इम्पॉसिबल सी बात ये है कि पाकिस्तान में ये चीज बन चुकी है. ठीक है. इफ रिसोर्स इज राइट, इफ रिसोर्स इफ रिसोर्स इज राइट, एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर थिंग. इनिशियल कॉल पे कभी भी पाकिस्तान से बाहर या इंटरनेशनली आपसे कोई पूछता ही नहीं कि व्हाट्स योर करंट सैलरी, क्योंकि दे ऑलरेडी मेंशन देयर करंट सैलरी ऑन द फॉर्म, ऑन द लिंक्डइन फॉर्म, ऑन द एप्लीकेशन. ठीक है. आखिर में जाके आप उनको बोलते हैं कि भाई ठीक है, दिस इज द सैलरी, टेक इट और लीव इट, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाता है कि सही है भाई, बंदा टैलेंटेड है. वो 1 लाख पर है यार, ये उसका मसला है, बेचारा गलती से 1 लाख पे था, लेकिन हमारे पास पोजीशन 3 लाख की तो हमने दे दी. बट यू आर ऑल्सो राइट कि पाकिस्तान है, अनएक्सपेक्टेड चीजें होती रहती होंगी, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि इससे बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट होती होंगी, तभी एचआर करता होगा. इसमें ना एक और चीज़, क्योंकि मैं इस चीज़ को अपनी करंट ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड आई एम ग्लैड दैट आई एम एबल टू डू दैट। नॉट एवरीबडी, नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन दैट, दैट इज दैट वी ट्राई टू मैच द इक्विटी। अब मुझे अगर पता है कि मेरे पास 3 असिस्टेंट मैनेजर बैठे हैं हु आर ड्रॉइंग अराउंड 150 170K, ठीक है, हम्म. दोनों में से किसी एक साथ है, तो मैं मेरे पास एक इंडिविजुअल आ रहा है जो कि 80 पे है, तो इंस्टेड ऑफ ऑफरिंग हिम 130 140, आई वुड स्ट्रेट अवे ऑफर हिम द सैलरी दैट ऑल द अदर असिस्टेंट मैनेजर फ्रॉम द सेम डिपार्टमेंट आर ऑन, ठीक है। एग्जैक्टली दिस इज द तो पॉइंट ना कि आप कर रहे हैं. ये चीज़, हाँ, ये चीज़ मैंने कहा ना कि ये हर ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिस नहीं कर रही है। आई डोंट नो वेयर डिड दिस केपीआई केम फ्रॉम, क्या आप जो है वो जितना कम पे बंदा हायर करोगे उतना जो है वो कंपनी का फायदा होगा, या उतना जो है वो आपकी वाह वाह होगी। मतलब मेरा 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 यही सवाल होता है उन एचआर से कि कंपनी का फायदा करके आपका क्या फायदा होता है? कंपनी ये थोड़ी है कि अगर आपने 2 लाख का बंदा 1 लाख में हायर करा तो कंपनी आपको 1 लाख रुपए तो दे नहीं रही. ना तो आपका, ना कंपनी आपको बोलती है कि फाइन, आपने कंपनी के 10 लाख रुपए बचाए तो अगली साल कंपनी का.
be a reason for the employee turnover because as you said कि अगर एक इंडिविजुअल है more or less देखें जब हम एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं ना तो हमें पता चल ही रहा होता है कि मेरे साथ वाला बंदा या मेरा जूनियर या मेरा सीनियर जो है वो कितने पैसों पर है ऑल्दो हम्म। आपको अपनी सैलरी शेयर नहीं करनी है बट ऑफ कोर्स व्हेन योर बैचमेट्स व्हेन योर कोलीग्स यू वेंट आउट फॉर टी यू वेंट आउट फॉर सिगरेट बात होती है बात निकल जाती है बात पता चल जाती है यू कैन नॉट हाइड इट हम्म। लेकिन एज एन HR पर्सन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द इक्विटी अगर आपको पता है कि आपके पास एक पोजीशन का बजट जो है वो सो एंड सो है एंड द एक्सपेक्टेशंस of that particular individual is less than what you have in your hand right now तो आप उसको वो दे दो जो आपका बजट है उससे आपका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि आपका एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो जो है वो काफी हद तक कंट्रोल रहेगा ठीक है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर वो आप उसको अच्छी सैलरी देंगे तो वो जाहिर है और मेहनत से काम करेगा, ये मेरा मेन मकसद था। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड एक बड़ा और चीज होती है कि व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स द राइट टाइम टू स्विच टू अनदर कंपनी? आई सी पाकिस्तान में दो तरीके की मेंटेलिटी है, दो नहीं तीन तरीके की। एक जो बचपन से एक कंपनी में गए थे और उन्होंने वो कंफर्ट जोन बना लिया और अब वो चेंज ही नहीं करते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कंपनी उनको किस तरीके से रखती है, ठीक है, ये उनको बस एक कंफर्ट जोन मिल जाता है और वो उसी में रहता है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बंदा अपनी ग्रोथ खत्म कर देता है, क्योंकि आप अगर एक ही जगह एक ही डोमेन में काम करें, either you are not getting promotions or challenges horizontally or vertically, whether you are becoming the seniors in the position or whether you're doing something जो कंपनी को भी फायदा कर रही है और आपकी ओवरऑल ग्रोथ में भी फायदा कर रही है। तो एक तो वो तरीके के लोग हैं, दूसरे वो तरीके के लोग होते हैं जिनको लगता है कि स्विचिंग एवरी ईयर विल मेक सेंस, ठीक है। मुझे उसमें एक और चीज बड़ा मसला लगता है कि आई डोंट थिंक सो एक साल इट्स मोर देन एनफ टू अंडरस्टैंड अबाउट द कंपनी, कि आप एक साल में 6 महीने तो आपको कंपनी को समझने में लग जाते हैं, उस पोजीशन को समझने में आपको तकरीबन 6 महीने 7 महीने लग जाते हैं। तो साल बाद लोगों का ये होता है कि भाई ठीक है, अगले साल अगर अच्छी रेज मिलेगी, अच्छी सैलरी रेज होगी तो ठीक है, वरना नहीं दूसरी जॉब देख लेंगे। और फिर आ जाते हैं जेनजीज, जेनजीज कह लें या वो लोग आ जाते हैं कि जो कहते हैं कि ठीक है यार, हाँ ये कोई हमें 20,000 रुपये भी ज्यादा देगा, हम स्विच कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक लॉन्गर टर्म में क्या जॉब हॉपिंग या जॉब स्विचिंग किस तरीके से करने चाहिए जो लॉन्गर टर्म में सही रहेगा? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है देर इज नो हार्म इफ यू आर वर्किंग फॉर वन कंपनी फॉर मोर देन 5 years, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल किसी ना किसी तरीके से ग्रोथ तो होनी चाहिए ना। तो व्हाट डू यू थिंक व्हाट शुड बी द राइट पॉइंट वेयर यू डिसाइड के ओके फाइन, दिस इज द राइट पॉइंट टू स्विच टू अ न्यू जॉब? you really need to identify your goals you need to identify your ambitions first ठीक है अगर मुझे पता है कि यार मेरे लिए इस वक्त इफ आई एम इन माय इनिशियल करियर स्टेज जहाँ मेरे लिए पैसा इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट हूँ मुझे 50 भी देंगे तो भी ठीक है मुझे 70 भी देंगे तो भी ठीक है ऑल्दो इट्स स्टिल नॉट इनफ टू मैनेज द एक्सपेंसेस लेकिन अगर मुझे जो है वो ग्रोथ मिल रही है इफ आई एम गेटिंग टू लर्न इफ आई एम गेटिंग टू इम्प्लीमेंट द स्टडी व्हाट आई हैव स्टडीड सो फार और मुझे ग्रोथ मिल रही है तो मैं फिर सेटल डाउन कर जाऊँ लेकिन यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर लर्निंग अगर आपकी लर्निंग स्टॉप हो गई है ना दिस इज द मेजर रेड फ्लैग एंड यू नीड टू स्विच राइट अवे ठीक है आपको अपनी लर्निंग पे पॉज नहीं लगने देना अगर आपकी लर्निंग पे पॉज आ गया इट मीन्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू इम्प्रूव योरसेल्फ आप वही रूटीन टास्क कर रहे हो आप वही चीज़ कर रहे हो वैसे आपको जो है ना वो अगली ऑर्गेनाइजेशन में सेम टास्क के भी मिल जाएंगे और शायद इससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे हम्म। लोगों को जॉब लोगों को कंपनीज को लोगों की ज़रूरत है पैसे देने को वो तैयार हैं लेकिन आपकी ग्रोथ क्या है आपने उस चीज़ को भी देखना बहुत ज़रूरी है ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड अभी आपकी बात करते करते ऐसी मैं मेरे दिमाग में सवाल आया कि टेक्सटाइल इज अ मेल डोमिनेंट फील्ड, राइट? टेक्सटाइल के अंदर रेशो आई थिंक 20-80 का होगा या तो शायद इससे भी ज्यादा ही होगा। एंड नाउ HR इज द फील्ड जहां पे हम ज्यादातर लड़कियां देख रहे होते हैं। तो क्या मेल डोमिनेंसी में HR लड़की होना ही लाजिम है? HR लड़कियां ही क्यों होती हैं?
why we are not seeing HR या public person जो कि बात कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि डज इट लाइक इज इट द रियलिटी और इज जस्ट अ मिथ? क्योंकि मैंने जहां तक सुना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज नॉट दैट गुड इन पाकिस्तान। देयर आर लॉट ऑफ मोनोपोली, यूनियंस हैं, एंड इट्स नॉट अ कॉर्पोरेट काइंड ऑफ अ थिंग। ठीक है, आप इंडिविजुअली इसको कितने भी बड़े लेवल पे इंडस्ट्री को कॉर्पोरेट करने की कोशिश करें, बट इट इज स्टिल अ सेटिया सेटिंग, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, आप उसके अंदर कितने भी सिस्टम्स ले आए, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट द अपर मैनेजमेंट सेज, दैट्स द रूल। डू यू थिंक इट्स लाइक दैट और इट्स अ मिथ? I think it is somehow true and it is somehow a myth because it totally depends on the individual कि वो अपनी बात कैसे मनवाता है. You will find Sekhya culture in even in IT industry too. IT industry की मैं इसलिए बात कर रही हूँ because I have worked for different clients when I was working with the consultancy. I have worked for the IT company itself. बट तो बट यहाँ पे एक और चीज है ना कि मैं तो खैर पाकिस्तानी कंपनी में जो आईटी कंपनीज है उनको आईटी कंपनीज कहता नहीं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो आईटी कंपनीज आर लाइक बंच ऑफ पीपल गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम अपवर्क एंड सबमिटिंग दैट। तो मतलब दिस इज नॉट एन आईटी कंपनी, यू आर नॉट मेकिंग अ सर्विस, यू आर नॉट मेकिंग एनीथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। ठीक है, तो आप अपने आप को आईटी कंपनी तो ना ही कहें। आई वाज अफ्रेड, आई वाज टॉकिंग टू समवन एंड दे वर लाइक यार मेरा तो आईटी में बहुत स्कोप है। मैंने कहा आईटी में स्कोप है, आपने आईटी में क्या करा है? एंड आई वाज लाइक यार हम लोग क्लाइंट्स लेते हैं और उनका काम करते हैं। मैंने कहा यू आर जस्ट अ मिडिल मैन, यू आर एन एजेंसी, यू आर गेटिंग क्लाइंट फ्रॉम अपवर्क एंड फाइवर एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड जस्ट डूइंग थिंग्स जिसमें आप अलग अलग लोगों को पकड़ के काम करा रहे हैं, तो उसको आईटी कैसे बोल सकते हैं? यू आर नॉट मेकिंग अ प्रोडक्ट। यू आर राइट कि वहां पे सीटी इस तरीके से होता है, कल को एक बंदा सोचता है एंड नॉट, क्योंकि पाकिस्तान में अगर इस तरीके की आईटी कंपनीज की बात करूं तो शायद हर गली के अंदर एक दो आईटी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। किसी चार पांच लोग मिले, उन्होंने बोला चलो ठीक है बनाते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट रनिंग द बिजनेस। ठीक है, बट जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, इट्स नॉट इट्स नॉट लाइक कि प्रोजेक्ट आ गया, कर हाँ. लिया। ठीक है, आपकी रोलिंग इस तरीके से हो ही नहीं रही है। ठीक है, 99% टेक्सटाइल जो पाकिस्तान में है, वो पाकिस्तान के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के बाहर से ब्रांड जितने भी आते हैं उनके लिए काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए उसमें ज्यादा बड़ा मार्जिन है। सही है, लेकिन उसके प्रोसेसेस स्मूथ लाइन है कि भाई ठीक है, अगले 6 महीने तक ये काम कर रहा है, उसके अगले 3 महीने ये काम करना है, उसके अगले 4 महीने ये काम करना है। ऐसा नहीं है कि भाई कोई काम आएगा तो काम करेंगे। ठीक है, और उसमें आपको बहुत सारी चीजें मैनेज करनी है। इसके अंदर इट्स नॉट लाइक के अच्छा, मैं इसको इस तरीके से भी कहता हूँ कि क्यों मेल डोमिनेंट है, क्योंकि हम कोई भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को ना कोई बड़े अच्छे शारा फैसल के ऑफिस में नहीं देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली वो साइड एरिया में है, उनको उस तरीके का काम करना है और उसी तरीके से आपको चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, मेल डोमिनेंसी इसलिए भी है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, रात के 9-10 बजे अगर आपको साइड एरिया से आपको औरंगी वाली साइड से आना है, तो देर आर लॉट ऑफ सिक्योरिटी हैजर्ड्स एज वेल इन पाकिस्तान। ठीक है, Very तो उसके लिए क्या करना है? मतलब डू यू थिंक these Setia cultures are now changing? People are doing something for that as well. I see a lot of companies, a lot of mills and factories are doing a lot of good. promotion related towards the women empowerment as well. क्योंकि वहां पे जो काम है ज्यादातर डाइंग हो गया, ये सारी चीजें जो है, ये बड़ा लक्कड़ अजम पत्थर अजम वाला काम है। इसमें हम स्विंग साइट पे, जहाँ पे सिलने वाला काम है, या जो वो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि कपड़े से कोई चीजें बना रहे हैं, वहां पे हाँ आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन्स आर वर्किंग ओवर देयर। बट if I discuss about mills and big manufacturers of clothing, it's totally a male dominant. So आप उसके अंदर आपको क्या लगता है, आप किस तरीके से आप अपनी ग्रिप बना सकते हो, या आपने कैसे बनाई आपको? अच्छा, मैं एचआर से हट के भी बात करूंगी बिकॉज आई हैव अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन दैट आई एम वर्किंग विद. हम्म। यहाँ पे प्रोडक्शन के अंदर ना हमारे पास खवातीन हैं और वो ऐसी खवातीन हैं दैट दे आर इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स एंड येट वर्किंग इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड लीडिंग द डिपार्टमेंट. सो ओके। मुझे वो चीज़ इंस्पायर बहुत करती है कि प्रोडक्शन इज लाइक सोनली सोनली मेल डोमिनेंट डिपार्टमेंट. हम्म। एचआर में आपके पास टेक्सटाइल हो या नॉन टेक्सटाइल हो, फीमेल मेल का रेशियो आपको फिर मोरलेस बराबर मिल जाता है. लेकिन जब प्रोडक्शन की मैं बात करूँ ना, प्रोडक्शन पे सीनियर लेवल पे असिस्टेंट मैनेजर तक की अगर कोई खातून आ जाती है ना, या मैनेजर
कंपनी। Mm, तो वो चीज़ बहुत इंस्पायरिंग हो जाती है बिकॉज़ द इंडिविजुअल हैज़ सम टैलेंट दैट इज़ बीइंग pushed through and through that the individual is capable of sitting on the role of assistant manager. As an assistant manager, as a manager, it's your responsibility to convince your general managers, your upper management, whatsoever, जितनी भी layers बीच में आ रही होती हैं, आपने अपनी बात उनसे कैसे मनवानी है? तो we have like a few people in Feroz 1888 Mills that are working as a female in production department, and they are actually thriving. तो मुझे ये चीज़ अच्छा, और ये चीज़ मुझे कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस की भी बहुत पसंद है क्योंकि दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। mm, इक्विटी से मुराद ये है कि आप वाकई उनको इतना इक्वल समझ रहे हो कि आप उनको प्रोडक्शन में भी भेज रहे हो तो आपको मसला नहीं है। आप चाहे उनको सर्विस जो है वो डोमेन में भेजो तो भी आपको मसला नहीं है। आप किसी भी फील्ड में उनको भेज रहे हो आपको मसला नहीं है। mm, इंक्लूजन से मुराद ये है कि दे आर बीइंग इंक्लूडेड एज सेम एज द मेल्स आर बीइंग इंक्लूडेड। तो ये चीज़ मुझे बहुत कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इवन इन टेक्सटाइल हमारे पास यूनुस हो गया, हमारे पास लकी हो गया, लकी इज़ वर्किंग वेरी ग्रेट ऑन इट। यूनुस हमारे पास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डीएनआई पे। तहमीना होती हैं यूनुस में, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ हर। मैंने उनके सेशंस अटेंड किए हैं एंड शी टोल्ड अस कि भाई किस तरीके से वो यूनुस में जो है वो इस तरह की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ रहे होते हैं। fair enough. The last thing that I wanted to discuss with you is, ठीक है, हमने सबकी ग्रोथ के बारे में जान लिया, हमने एम्प्लॉइज के ग्रोथ के बारे में जान लिया, बट एचआर भी तो खुद एम्प्लॉई है। ठीक है, हम्म। एचआर ने भी तो अपने आप को ग्रो करना है। आपको क्या लगता है कि एचआर का अगर रोड मैप बनाया जाए तो कैसा होता है? क्योंकि one day you are hiring for a company and one day you have to give an interview for another company. ठीक है, what's the roadmap for an HR? How do you see yourself as a growth? ठीक है, आपको क्या लगता है कि यार अल्टीमेट ग्रोथ प्लान एचआर का क्या होता है? दैट्स माय लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। अच्छा, अल्टीमेट गोल ये होता है, मैं एज एन इंडिविजुअल बात करूँगी इस वक्त, नॉट एज एन एच आर पर्सन। एज एन इंडिविजुअल मेरा गोल ये है कि आई नीड टू कीप इम्प्रूविंग माई सेल्फ, आई नीड टू कीप ग्रोइंग। हम्म, मेरे पास फिरोज में आने के बाद मेरा जो ग्रोथ आया वो ये था कि आई नेवर वर्क फॉर सच बिग डिपार्टमेंट्स, या आई नेवर वर्क फॉर डिपार्टमेंट्स थ्रू एंड थ्रू एज एन बिजनेस पार्टनर। अब बिजनेस हम्म, पार्टनर में अगर उस डिपार्टमेंट के अंदर किसी एक इंडिविजुअल को हड्डी ऑफ भी चाहिए ड्यू टू सो एंड सो रीजंस, इट्स माय हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी टू नो दैट कि हाँ भाई डिपार्टमेंट में सब खैरियत है क्या नहीं है। तो जब आप इस तरह की चीज़ों में आते हो तो मेरा जो करियर पाथ यहाँ पे आके थोड़ा सा इन्हांस हुआ वो ये था कि मेरा बिजनेस पार्टनरिंग का रोल, क्योंकि डिपार्टमेंट के साथ बैठ के डिस्कस करना कि क्या जेडी चाहिए, क्या बंदा चाहिए, क्या कल्चर है, क्या पैसे हैं, वो तो हम करते रहते हैं। लेकिन उस डिपार्टमेंट के पर्टिकुलर ग्रीवेंसेस को देखना कि उस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, क्या कोई पॉलिटिक्स तो नहीं है, उसके अंदर थ्रू एंड थ्रू इन्वॉल्व होना एज इफ इट्स योर ओन डिपार्टमेंट, आपको उसकी थ्रू एंड थ्रू चीज़ें जानना, दैट इज़ वेरी बिग। एंड वो मेरा यहाँ पर आके बहुत इन्हांस हुआ। सो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं यहाँ से भी कहीं और अगर जाती हूँ तो आई हैव दिस थिंग इन विथ मी कि मेरे पास वो चीज़ होगी कि हाँ ठीक है, I have like experience of handling departments of like so and so numbers। तो वो चीज़ मेरे लिए होगी। फिर डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन ओवर्स द रोल ऑफ बिजनेस पार्टनरिंग। तो जहाँ पे होता है वहाँ पे चीज़ें स्मूथली थोड़ी चल रही होती हैं, जहाँ पे नहीं होता है वहाँ पे ऑब्वियसली एज अ रिक्रूटर, एज अ टैलेंट पर्सन, आपको ही जो है वो थ्रू चीज़ों को देखना पड़ता है। perfect. I think we have discussed a lot of good pointers, Riza, and I'm pretty much sure a lot of people will know the textile side of the HR side as well, because a lot of time लोगों को ऐसा लगता है कि एम्प्लॉई के अंदर एम्प्लॉई के पास ही मसले हैं, but we need to also discuss about कि employer is also a human. So thank you so much for your time. It's a pleasure to have you on the session, Fiza, and I'm pretty much sure if anyone wants to have a connection with you, wants to have any discussion, they can reach out to you on LinkedIn, just for the audience.
if you wanted to reach out to Fiza, write a proper message. I'm pretty much sure अगर आप hi या hello का message करेंगे तो don't expect any replies. But if you reply, if you ask a proper message, तो I'm pretty much sure Fiza is gonna reply for that. Thank you so much, Yes. Fiza. Thank you so much for your Thank time. It's my pleasure to have you on the session. thank you very much.